Hello, Namaste. How are you all today? Today's video does not teach how to draw this bride. That video I will create soon. But today is just a background play for whatever information I want to share with all of you. If you feel you only want to watch whatever the way I am drawing this bride, then you can mute the video. Or if you want to only listen to me and my drawing is distracting you, then you can close your eyes, whatever the option you have. Okay, I get many messages asking how to improve Mehndi art. So I thought let me create one more video where I can share few tips that could be helpful to improve your henna art. आज का ये वीडियो ये ब्राइड कैसे ड्रॉ करनी है उसके ऊपर नहीं है, वो मैं कहीं किसी दिन और बनाऊंगी वो वीडियो, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ और ये ब्राइड का वीडियो उसकी बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और जो आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ वो आपको आपकी मेहंदी आर्ट को इम्प्रूव करने में बहुत मददरूप होगा। सो टिप नंबर 1, ड्रॉ कॉन्फिडेंट लाइन्स। As we all know, Mehndi is line art, and if our lines are not confident but instead shaky, then it won't look good. Try to draw perfect lines. Many people draw lines like this, like the way they are making strokes. They draw broken lines and it can completely ruin the drawing. जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेहंदी एक लाइन आर्ट है, और अगर हमारी लाइंस कॉन्फिडेंट नहीं है और बहुत शेकी है और स्ट्रोक्स वाली है तो हमारा जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। और इसीलिए कॉन्फिडेंट लाइन होना, परफेक्ट लाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो है वो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, लाइक तोड़ तोड़ के लाइन को ड्रॉ करते हैं जैसे स्ट्रोक्स बना रहे हो। और ऐसे ब्रोकन लाइन से अगर आप कोई भी एलिमेंट ड्रॉ करेंगे ना तो उससे वो जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे किसी छोटे बच्चे ने एक पेंसिल से ड्राइंग बनाया होता है तो वो कैसा लगता है, बस वैसा ही लगेगा। क्योंकि मैं ये बात बार बार बता चुकी हूँ, हर एक वीडियोज़ में मैं बताती हूँ कि आप पहले लाइन की प्रैक्टिस करें, परफेक्ट लाइंस। तब तक आप लाइन की प्रैक्टिस करते रहे जब तक आपको ना लगे कि आपकी लाइंस अभी परफेक्ट कॉन्फिडेंट आ रही है। हर एक तरह की लाइन, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि थिन लाइन, थिक लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, हर तरह की लाइन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जब आपकी लाइन ऐसी परफेक्ट आने लगे तब आपको लगेगा कि आपका मेहंदी का आर्ट, आपका ड्राइंग किस तरह से इम्प्रूव होगा। That's why again and again I keep telling all of you, practice lines, perfect lines, all types of lines like straight, curve, zigzag, all types. But just don't practice for practicing. Practice for improvement. For perfect lines, for clear and beautiful henna art, best henna quality is also very important. Otherwise, however you practice, you won't get 100% result or any improvement. Think, if your pen is leaking or its nib is broken or ink is dried, will you get best drawing using that pen? No. Even though you are the expert, no, you won't get best drawing using that pen. Same way, if your cone and mehndi paste is not of good quality, then nobody can help you improve your art. और परफेक्ट लाइन होने के लिए ज़रूरी है परफेक्ट मेहंदी का पेस्ट होना और कोन होना। आप इमेजिन करिए, अगर आपकी पेन जिससे आप ड्राइंग बनाना चाहते हो उसका इंक ड्राई हो रहा हो या उसकी पेन की नीब ख़राब हो चुकी हो या तो फिर वो पेन लीक कर रहा है, अगर ऐसी पेन से आप ड्राइंग बनाएंगे तो क्या होगा, ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। इवन तो आप बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। तो वो सेम ही चीज़ हमारी मेहंदी के आर्ट में भी लागू पड़ती है। सो फ्रॉम दैट टिप नंबर 2, either learn how to make perfect henna paste and cone or find the supplier who sell best mehndi cones.
I would say learn yourself how to make best henna cone. Why? Then you are not dependent on third party for your needs. Now for best henna paste, you need best quality of henna powder. I have talked with Kinjal from Kinjal Mehndi Art, and she has started to supply best quality henna powder. If any one of you are interested, her contact details are in description box. But I request, don't call her, but if possible only WhatsApp her, as she is very busy professional artist and I don't want that anyone will disturb her. Okay, so when she will have time, then she will get back to you. And how to make cone and paste, I have already posted video on that, but soon I am going to post revised video on same topic but in Hindi also, and this time I will use Kinjal's henna powder. So मेरी टिप नंबर 2 है कि बेस्ट मेहंदी का कोन होना, बेस्ट मेहंदी की पेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर हो सके तो अपनी खुद की मेहंदी की पेस्ट बनाना आप सीख ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर आपके आर्ट के लिए आपको किसी दूसरे आदमी पर दूसरी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा. और या तो आप अगर नहीं हो सकता है बाय एनी चांस आप अपनी खुद की पेस्ट नहीं बना सकते, तो ऐसे सप्लायर को ढूंढ लीजिए जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के मेहंदी के कोन बेचता हो. जैसे मैंने कहा कि अगर आप आपकी खुद की बनाते हो तो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है. लेकिन आइदर वे ट्राई टू फाइंड बेस्ट क्वालिटी की henna पेस्ट और कोन आपको मिल जाए, कोशिश कीजिए. मेहंदी का कोन और पेस्ट कैसे बनाना है वो वीडियो मैं आगे डाल चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. लेकिन मैं वापस उसका रिवाइज वर्ज़न, जो मेरा न्यू वर्ज़न है, वो मैं जल्दी ही उसका वीडियो भी डाल दूँगी. अगर आप किसी को बेस्ट क्वालिटी henna चाहिए, henna पाउडर चाहिए, तो किंजल जो मुंबई में रहती है, वो उसके साथ मेरी बात हुई है और वो henna पाउडर सप्लाई अभी कर रही है. उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसको सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बिज़ी है. तो जब भी उसके पास टाइम रहेगा वो आपके व्हाट्सएप का आंसर दे देगी. नाउ अबाउट टिप नंबर 3. Go slowly, as overnight no one can master any art. It takes ages and non-stop practice. But always remember to start small. Don't jump on full-fledged designs when your lines are not perfect and you are not confident with elements. That's the reason in my tutorial videos I share small element and ask all of you to practice them first. So once your lines are confident, practice small element. How can you practice them? I can share my idea about it. Buy 2 drawing books or sketchbooks. Whatever elements like filler elements, border elements, checks elements, all types of element. Not only whatever I teach, but whatever you see in other artists' design, all those elements, draw them with pencil in one book. Then practice them enough with mehendi, and once you feel confident, then draw same elements with mehendi in another book. हो सके तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक के बाद एक एलिमेंट लीजिए और उसको पूरा टाइम दीजिए. तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको लगे कि हाँ अब ये बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत हो रहा है. एक बात आप समझ लीजिए, ओवरनाइट, एक ही रात में कोई परफेक्ट बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं बन सकता. उसके लिए उम्र निकल जाती है और बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है. तो इसीलिए मेरी तीसरी टिप है कि स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए. जैसे आपकी एक बार कॉन्फिडेंट लाइन, परफेक्ट लाइन आनी शुरू हो जाए, आप छोटे छोटे जो एलिमेंट है उसको, सिर्फ एलिमेंट को प्रैक्टिस कीजिए.
फुल फ्लेज पूरी डिज़ाइन बनाने आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरी डिज़ाइन नहीं बन रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, आप डिसअपॉइंट फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसे कि अगर आपको पूरी सीढ़ी चढ़नी है तो क्या करेंगे, एक के बाद एक स्टेप चढ़ते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। उसी तरह छोटे छोटे एलिमेंट को आप प्रैक्टिस कीजिए पहले। एक बार आपके एलिमेंट्स, आपकी लाइन सब कुछ परफेक्ट होने लगे तब जाके आप उसको पूरी डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल कीजिए। और छोटे छोटे एलिमेंट को आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए मैं एक अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सके तो आप 2 ड्राइंग बुक्स बाय कीजिए। ड्राइंग बुक्स ना हो तो स्केच बुक भी चलेगी। तो 2 ड्राइंग बुक्स में बाय कीजिए। एक के अंदर जो भी नया एलिमेंट आप सीख रहे हैं वो पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद उसी एलिमेंट को आप बहुत बार परफेक्ट हो जाए तब तक रफ में प्रैक्टिस करते रहिए मेहंदी से। और जब आपको लगे कि हाँ अभी आपका ये एलिमेंट बहुत अच्छे से है मेहंदी से हो रहा है, तब जाके उस दूसरी स्केच बुक में, दूसरी ड्राइंग बुक में आप वही एलिमेंट मेहंदी से ड्रॉ कीजिए। Why are we doing this? Simple, to create database of elements. It's like taking notes in class, then go through them and then create fair notes for future learning. Simple habit can change the way you see, learn and practice your art. As once you have all elements in book, then you get ideas how to mix and match them to create something new, as you might have seen me doing that. अभी इससे फ़ायदा क्या होगा, सोचिए। जब हम लोग पढ़ाई करते थे कॉलेज स्कूल में, तो जब टीचर क्लास में पढ़ाती थी तो हम एक रफ़ नोट्स बनाते थे, फिर घर जाके उसको रिफ़र करके उसके ऊपर से एक फेयर नोट्स बनाते थे, ताकि हम जब एग्ज़ाम टाइम आए उसको रिफ़र कर सके, अच्छे से उसे पढ़ सके। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका एक एलिमेंट्स का डेटाबेस बनने लगेगा, और जब आपका डेटाबेस बनने लगेगा तो आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे कि कैसे आप 2-3 मल्टीपल एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कुछ नया एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। और जब आप अपनी डिज़ाइन बना भी रहे हो तो आपके सामने वो एलिमेंट्स रहेंगे, तो आपके पास आइडियाज़ भी बहुत रहेंगे। नाउ लेट्स गो टू टिप नंबर 4. It seems very odd but very important. Practice line variation. Now what is line variation? See these 2 many drawing. Which one look beautiful? For me, number 2 look beautiful. Why? Because you can see all elements clearly. Not only that, it gives importance to important element, while secondary elements are just there to increase the beauty of entire look. Unlike first design where everything is just on same level. That's the important key. Line variation that put apart novice from expert. I have seen this is the major problem many beginners face. Like many of you will have complained that however we practice, even we copy design point to point, even though our design does not look that beautiful. Why? This is the one of the reason after confident lines. मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लाइन वेरिएशन प्रैक्टिस कीजिए। क्या है लाइन वेरिएशन? लाइन वेरिएशन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अगर बड़ा मोटिव है तो उसको हम गाढ़ी मोटी लाइन देते हैं, जो फिलर एलिमेंट्स होते हैं उसको हम पतली छोटी वाली लाइन देते हैं, और फिर जो डेकोरेशन के एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम मिक्स लाइंस यूज़ करते हैं। तो जो देखने वाला होता है उसको पता चलता है कि मेन एलिमेंट्स कौन सा है, फिलर एलिमेंट्स कौन सा है, तो उसके बीच में वो बैलेंस बनाता है। तो इसी से एक्चुअली आपकी डिज़ाइन की खूबसूरती बाहर आएगी। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल पे आपको 2 डिज़ाइन दिखा रही हूँ। अगर मैं पूछूँ कि इन दोनों में से खूबसूरत कौन सी लग रही है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से नंबर 2 है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स है, मोटिव है, उसको वो उभर के बाहर आ रहा है। और जो पहली वाली है उसमें सब कुछ एक समान लग रहा है, क्योंकि हर एक समान लाइन से पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। मेन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है,
वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है कि एक सामान बना दिया गया है जिसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं है। तो इसीलिए लाइन वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, और वही एक चीज़ है जो नए आर्टिस्ट को एक्सपर्ट आर्टिस्ट से अलग करता है। तो इस बात का बहुत बहुत आप ख्याल में रखें। Like many have confident lines, but they don't use line variation. You might have seen how I give thick lines to important motifs, then I give outlines. I use delicate and bold elements together to create contrast, and I have always talked about all this in my almost all tutorials. Now tip number 5. About this also I have talked many times. If you are not confident how to draw big element, then draw reference lines. Then draw confident lines. That way you will get perfect shapes. And don't hesitate to erase your mistake immediately. And if you are using reference lines, then it's not the big problem. Few drawings are like that need reference lines to bring perfection, and nothing is wrong. If you want to use reference lines, then use. Don't feel someone will judge you for that. As I said, henna is line drawing, and if it's too late, we cannot correct our mistakes in henna art. अगर आप कोई बिग वाला बड़ा वाला एलिमेंट ड्रॉ करने में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, तो आप पहले रेफरेंस लाइन बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा आप रेफरेंस लाइन बनाएंगे तो। पहले रेफरेंस लाइन बनाइए और उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। कई आर्टिस्ट जो मंडलास बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, पेंटर होते हैं, वो सारे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद एक कॉन्फिडेंट ड्राइंग उसके ऊपर लाइन बनाते हैं। तो हम मेहंदी आर्टिस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? लेकिन याद रखिए कि सिर्फ बड़े वाले एलिमेंट के लिए ही रेफरेंस लाइन बनाए, छोटे छोटे एलिमेंट के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। तो रेफरेंस लाइन हम इसलिए बनाते हैं कि अगर ताकि हमसे कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो हम इमीडिएटली उसको इरेज करके निकाल के उसके ऊपर और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें आसानी हो जाएगी और उससे आपका ड्राइंग भी परफेक्ट होगा और आपकी पूरी डिज़ाइन में कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो जहाँ भी ज़रूर आपको लगे, आप बिल्कुल हिचकिचाए बिना रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी आपको इसके लिए जज नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट ये करते हैं। Even sketch artists, doodle artists, mandala artists, painters, all types of artists first draw reference lines, then create their drawing around it. So why not us Mehendi artists? So use reference lines if you feel it's needed, but only for big elements and improve your art. तो आज मैंने आपके साथ ये कुछ टिप्स अपनी शेयर की हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, जिससे मैं सीखी हूँ, वो मैं आपके साथ आज मैंने शेयर किया है। मैं विश करती हूँ कि ये सब आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। अगर आप इससे कुछ इम्प्रूव करते हैं, आपको ये हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे बताइए कि आपको ये किस तरह से कैसे हेल्पफुल रहा, तो मुझे आगे भी पता चले कि मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने हैं। मैं जानती हूँ कई बार ऐसा होगा कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, मैं इतना सारा प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हर रोज़ मैं इतना करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है। धीरज रखिए, पेशेंस, पूरी लगन से प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जो अगर आपने कुछ ड्रॉ किया तो देखिए इसमें आपकी गलती क्या हो रही है और आप क्या सुधार लाएंगे तो आप इससे बेहतर कर सकेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक एस्टैब्लिश्ड फुल फ्लेज एक परफेक्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहेंगे। परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियाँ हमेशा उसमें होती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप और बिल्कुल धीरज मत हारिए। अगर आप कुछ भी परेशानी है तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मुझसे हो सकेगा, बन पड़ेगा उतना मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।
I hope my all these tips would be helpful in your henna learning journey. Apply all of them or whichever you feel can be helpful to you, and let me know whether they are helpful to you or not. As I always say, these are my own experiences that I'm sharing with all of you. They were helpful to me, like improving my art, so I feel I should share them with all of you. So it might end up helping any one of you. So practice and improve and don't give up, as it's slow journey and many a times very frustrating, but your dedication and practice in right direction will pay off. So I take your leave for now so I can start working on my next video. So till I meet you all again, bye, keep watching, and thank you all for all the kind words of appreciation because it means a lot to me. They are the reason behind all my inspiration. Thank you everyone from bottom of my heart. Thank you very much. See you. Bye bye. Bye bye. That we have learned so far. For semicircle, I used traditional old-fashioned checks, and trust me, these checks are still very popular because with color they look awesome. Just enhance the beauty of entire design.